রাজৌরির প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। কর্মহীনরা কাজ পাচ্ছে, গৃহহীনরা পাচ্ছে বাড়ি। খুশির হাওয়া গ্রাম জুড়ে। বিগত প্রায় ৭০ বছর ধরে সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল এই সব এলাকার মানুষজন। এই সব এলাকায় প্রায় ২৫% মানুষের বসবাস। গ্রামীণ এলাকায় ছিল না পাকা বাড়ি থেকে রাস্তাঘাট, বেশিরভাগ বাড়ি ছিল মাটির। একটু বৃষ্টি হলেই দুশ্চিন্তার অন্ত থাকত না। এছাড়া পাকা রাস্তা না থাকায় চরম অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাতে হতো সাধারণ মানুষকে। ছিল না গাড়ি চলাচলের সুবিধাও, যার জেরে পায়ে হেঁটে যেতে হতো মাইলের পর মাইল। পাশাপাশি ছিল না হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কেউ অসুস্থ হলে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতেন অনেকেই। দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল এইসব এলাকা। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠত একটা দুটো করে লণ্ঠন। শিশুদের লেখাপড়ারও তেমন কিছু সুযোগ সুবিধা ছিল না। এক কথায় গোলাগুলির শব্দ আর বারুদের গন্ধ ছাড়া সবকিছুই ছিল অমিল। এইসব গ্রামের উন্নয়নে আগ্রহ দেখিয়েছে বর্তমান সরকার। গ্রামে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ লাইন, ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ পরিষেবা, মিলেছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি। এখন এলাকার অনেক বাড়ি ইট কাঠ পাথরের তৈরি। সরকারি বাড়ি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে এখনো অনেকেই। সেই তালিকাটাও নেহাত কম বড় নয়। কাঁচা রাস্তাকে পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, সরকারি খাতের সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। स्कीमें हैं और इन स्कीमों को ही इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम है। अब आप देखते हैं कि पंचायत राज एक्ट के तहत फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और अब थर्ड ईयर जो है मुकम्मल हो चुका है। आवाम के पास अपनी नुमाइंदगी पंचीज़ की शक्ल में, सरपंचीज़ की शक्ल में, बीडीसी हजरात चेयरपर्सन की शक्ल में, डीडीसी मेम्बरान की शक्ल में मौजूद है। और ये तमाम लोग मिलकर इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि जो भी सरकार की स्कीम हो वो अवामी सतह पर पहुंचनी चाहिए। और इसमें हम सब कारबंद हैं, हम कर रहे हैं अपना काम। इंशाअल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं, अफसरान के साथ तालमेल है और यही पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी सरकार की स्कीम आती है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई रुकावट ना रह जाए। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে রাস্তা তৈরির কাজ। জোর কদমে চলছে সেই কাজ। কাঁচা রাস্তায় পড়েছে পিচের আস্তরণ। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বসির আহমেদ শেখ জানান, পঞ্চায়েত থেকে ব্লক সমস্ত স্তরে আলোচনার ভিত্তিতে এবং সকলের সহযোগিতায় চলছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। সেই কাজ যাতে উন্নত মানের হয় সেই বিষয়টিও নজরে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কাজ মিলছে জব কার্ড হোল্ডারদের। এর ফলে উপকৃত হচ্ছে বহু মানুষ। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट टाइप्स की बहुत सी मुख्तलिफ स्कीमें हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट होता है, बॉर्डर एरिया में स्पेशल बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद 2-3 सालों से वो अलग से जो बंकर्स बनाने के लिए अलग से फंड्स दे दिए गए थे। तो यहाँ के जो कोई काम है, जिस तरह से डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस टाइम टू टाइम, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो टाइम टू टाइम आता है ताकि ट्रांसपेरेंट मैनर में काम शुरू हो जाए और जल्दी जल्दी से काम शुरू हो जाए, उस तरीके से सारे काम किए जाते हैं। और उन टाइम मैनर्स में पंचायतों को इन्वॉल्व करके पंचायत राज एक्ट को जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, पंचायतों के सरपंच हैं, उनके मेंबर वगैरह हैं, तो सबसे पूरा डिस्कशन करके ट्रांसपेरेंट मैनर में हर गांव में काम किया जाता है। और हर जगह पे काम लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है ताकि गांव वालों को ग्रास रूट लेवल पे उनको काम हो जाए, अच्छी तरह से काम हो जाए, क्वालिटी भी मेंटेन हो जाए, ताकि लोगों की डेवलपमेंट के लिए ये सारे काम अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहे हैं। পঞ্চায়েত প্রধানের কথায় সরকারি উদ্যোগে গ্রামে লেগেছে উন্নয়নের হাওয়া। আর এর ফলে উপকৃত হচ্ছে উপত্যকার মানুষজন। কাজ পাচ্ছে বহু শ্রমিক। আগে কাজের জন্য ঘর বাড়ি ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হতো, এখন এখানেই মিলছে কাজ। এমনকি বাইরে থেকে লোক এসেও কাজ করছে এখানে। ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে হচ্ছে না কাউকে। বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। तो जब से मैं सरपंच बना हूँ तो मैंने यहाँ अच्छे काम किए हैं। गवर्नमेंट ने भी अच्छा हमारे साथ तावन किया है। बहुत अच्छे काम हुए। हमने यहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया है MG नरेगा के तहत। उसके बाद
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों को मकान भी दिए हैं, 50-60 मकान हमने बनवाए हैं। उसके बाद में जो बिजली की कमी थी हमने वो भी पूरी की है। तो उसके बाद में रोड भी बनाई हमने। आज ये जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है, क्योंकि लोगों को एक आदमी बीमार होता था तो चारपाई पे उठा के 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज ये चीज़ है कि आज रोड हमने कम से कम अपने एरिया में हर वार्ड में हर पंचायत के अंदर हमने रोडें फेरी हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हमें कोई नहीं है। अब गाड़ी की थोड़ी बहुत ही दिक्कत हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारी दिक्कत जो है वो दूर हो जाए। हम लोगों को रोज़गार, पहले लोग यहाँ से जाते थे कोई कश्मीर को, जम्मू, कोई पंजाब को, कहाँ, आज हम लोगों को यहाँ पे रोज़गार दे रहे हैं एमजी नरेगा के तहत। প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্থানীয়দের আর্জি, जनाब बहुत मुश्किल में रहते थे। यहाँ हमें लकड़ी भी नहीं मिलती थी और कच्चा मकान था, हम बहुत मुश्किल में रहते थे। जब बरसात होती थी उस वक्त वो कच्चे मकान, बीच में पानी सारा अंदर आता था। तो आज हमारे एक जो मकान बनाए हमें आज थोड़ी सहूलत मिल गई है। और हमारे अभी भी बहुत लोग गरीब हैं जिनके मकान बनाने बाकी हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे, प्रधानमंत्री साहब से और अपने सरपंच साहब से, को बाकी जो रह गए हैं उनको भी मकान दिए जाए। নতুনভাবে সেজে উঠছে রাজৌরি। কর্মহীনরা কাজ পাচ্ছে, গৃহহীনরা পাচ্ছে বাড়ি। এক কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।